So, today's topic is regarding journal entry. Today's topic is types of journal entries and then discount and rebate. Firstly, we will discuss about types of journal entry. So, two types of journal entries are there. One is First one is a simple journal entry, and second one is compound journal entry. Clear? So simple journal entry means in this type of journal entry, one aspect is debited, another one is credited. Means one transaction means one aspect is there regarding in debit side, and the another aspect is there, single aspect is there regarding credit side. Clear? Suppose one example is there, Nitin commenced business with cash. Only cash word is there. So two main aspects are Nitin is investing capital and in the form of cash. So two aspects are capital and cash. So firstly, cash is related with real account. So you have to apply real accounts rule on cash. So according to that rule, debit what comes in, credit what goes out. So cash is in comes in form regarding a business form. So you have to debit cash, and on capital you have to apply personal accounts rule because that capital presents a person, means एक person को represent कर रही है. So according to personal account rule, debit the receiver and credit the giver. So who is the giver of that particular amount of cash? Nitin is the giver. So you have to credit Nitin's capital. Clear? Nitin's capital लिख लो. अगर sole trader है, only one person is there, then you can write only capital account. So one aspect is debited, another one is credited. One aspects are there regarding each side. This one is single, or you can say simple journal entry. But another one is compound journal entry. This one is little bit different regarding simple journal entry. So two aspects are there same, but in one side more than one aspects are there. Means suppose one debit aspect is there, but regarding credit aspect two or more aspects are there. एक एक एस्पेक्ट को आप डेबिट करोगे और जो दूसरे एस्पेक्ट को आपने क्रेडिट करना था वहां क्रेडिट की साइड पे आपके पास मोर देन वन एस्पेक्ट्स रहेंगे. Or you can write one credit aspect is there but more than one debit aspects are there. Clear? या तो एक क्रेडिट होगा, ठीक है, टू और मोर देन टू डेबिट होंगे इन द सेम फॉर्म में, या एक डेबिट होगा और टू और मोर देन टू क्रेडिट रहेंगे. क्लियर? तो ये आपकी कंपाउंड जर्नल एंट्रीज रहेंगी. ओके, अब एक एग्जांपल देखो. सपोज एज अ फॉर्म you paid wages, salary, rent, interest, all in the form of cash. ठीक है, आपने ये सारी पेमेंट्स की हैं सेम डेट पे, सेम डेट पे. सो इन जर्नल यू हैव टू राइट डाउन. देखो अगर हम सिंपल लिखते तो क्या होता, वेजेस, सैलरीज, रेंट, interest all are related with firm's expense. So these are related with nominal account. So according to nominal accounts rule, you have to apply debit the expenses and losses and credit the incomes and gains. So according to that rule, you have to debit all these things. But second main aspect is because wages paid, salary paid, rent paid, interest paid is there. So we have to assume that this type of transaction is in cash form. क्लियर? अगर आपको पार्टी का नेम भी गिवन नहीं है, कैश वर्ड भी गिवन नहीं है, देन वी हैव टू अज्यूम इट दैट this type of transaction is in cash form. Clear? So second cash aspect is there according to because cash is involved in real account. So according to real accounts rule, debit what comes in and credit what goes out. Because cash is in goes out form, so you have to credit it. Clear? So according to this way, means according to single or simple journal entry rule, you have to firstly debit wages account and credit to cash. Then you have to make another one journal entry, that is salary account debit to cash. Then another one is rent account debit to cash.
देन अनदर वन इज इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर? तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हैट्रिक हो जाएगा। हैट्रिक मीन्स बल्कि हो जाएगा। ये 4 ट्रांजेक्शन है, चारों कैश में किए हैं, चारों एक्सपेंसेस हैं आपके। क्लियर? तो उस कंडीशन में ये आपके जर्नल की स्पेस को ज़्यादा जो है कवर करेगा, आपके टाइम को, आपकी एनर्जी को वेस्ट करेगा। सो इस वेस्टेज को रिमूव करने के लिए वी हैव वन अल्टरनेट, दैट इज कंपाउंड एंट्री। क्लियर? अब यहाँ पे आपने जो चीज़ें डेबिट करनी है वो सारी डेबिट कर दो। wages paid debit as an expense, salary paid as an expense you have to debit according to nominal account rule, rent paid expense according to nominal account you have to debit, interest paid debit because this is also an expense. But all these expenses are paid in the form of cash, so cash word is similar in all these transactions. So you have to credit one time cash, and the total amount of wages, salary, rent and interest you have to write down in cash column. ठीक है? सपोज आपने 1000 का वेजेस पे किया है, 1000 की सैलरी है, 1000 का ही रेंट है, 1000 का ही आपने इंटरेस्ट पे किया है। So total payment in cash form is 4000. So you have to write down to cash, and amount in amount column you have to write down rupees 4000. Clear? Compound journal entries. Okay, suppose these expenses are paid in check form, then you have to write down wages, salaries, rent and interest all are debited, and to bank you have to write down here. Next concept is discount. So two types of discounts are there. First one is discount means क्या है? Discount means a type of concession which is provided by the seller to their purchaser. ठीक है? ये कंसेशन जो है एक आपके प्रिंटेड अमाउंट में से एक डिडक्शन टाइप का कंसेशन होता है, आपको उतना अमाउंट कम पे करना पड़ता है। क्लियर? और ये जो डिस्काउंट है ये वो अपनी सेल को इंक्रीज़ करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको दे सकता है, और अपनी कैश की पेमेंट्स को रिकवर करवाने के लिए भी दे सकता है। सो बोथ आर इन्वॉल्व इन डिस्काउंट्स. So two categories are there: trade discount, second one is cash discount. According to trade discount is related with the means to increase the sale, or you can say large quantity sale को promote करने के point of view से one seller is provided a type of concession to their purchaser, and that type of concession is related with trade discount. क्लियर? अब एक सेलर के पास जो है वो 10 to 20 लाख की स्टॉक पड़ा हुआ है। क्लियर? और वो ये चाहता है कि ये स्टॉक जो है जल्दी से क्लियर हो जाए। सो उस कंडीशन में एक परचेज़र सपोज है उसके पास, और वो बल्क क्वांटिटी में उसे परचेज़ करना चाहता है, मींस मैक्सिमम क्वांटिटी उसकी सेल हो जाएगी। 10 लाख की जो है उसको परचेजिंग करनी है, तो वो उसको कैसे अट्रैक्ट करेगा? 10 लाख की परचेजिंग के लिए वो कहेगा कि आप यहाँ से करो, मैं आपको 1 लाख का डिस्काउंट दूंगा। सो दैट टाइप ऑफ डिस्काउंट विच इज़ रिलेटेड टू इंक्रीज द सेल ऑफ द सेलर। ठीक है? जो आपको एक्सेस में लार्ज क्वांटिटी में परचेजिंग करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए आपका सेलर जो डिस्काउंट दे रहा है, दैट टाइप ऑफ डिस्काउंट इज रिलेटेड विद ट्रेड डिस्काउंट। सो ट्रेड डिस्काउंट इज रिलेटेड विद द बल्क क्वांटिटी परचेज। क्लियर? जो आपको लार्ज क्वांटिटी में सेल के लिए डिस्काउंट मिलेगा वो आपका ट्रेड डिस्काउंट होगा। ओके? सो इसके बेनिफिट क्या होंगे? सेलर को क्या बेनिफिट होंगे? उसकी मैक्सिमम क्वांटिटी में सेल हो जाएगी गुड्स। क्लियर? लार्ज क्वांटिटी में। एंड नेक्स्ट क्या होगा? उसका बेनिफिट क्या होगा कि जो उसका प्रॉफिट मार्जिन है, देखो उसने 10 लाख की सेल पे भी आपको 1 लाख का डिस्काउंट दे दिया। इट मीन्स क्या है कि उसको फिर भी कुछ ना कुछ तो बेनिफिट हुआ ही होगा ना, तभी उसने आपको सेल किया है उतना, डिस्काउंट दिया है उतना। तो मीन्स कहने का कि उसका जो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ होगा, मैक्सिमम क्वांटिटी में सेल हो जाएगा, स्टॉक रिड्यूस हो जाएगा, स्टॉक क्लियर हो जाएगा। कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जिनका अगर स्टॉक जो है वो पेंडिंग रहना तो नेक्स्ट ईयर सेल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लाइक ये स्कूटीज़ और ऑटोमोबाइल टाइप ऑफ कंपनीज जो होती हैं। अब स्कूटीज़ का क्या है कि अगर स्टॉक जो है अनसोल्ड रह जाता है तो उस कंडीशन में नेक्स्ट ईयर वो
सेम प्राइस पे सेल करना बहुत मुश्किल होता है, तो इससे बेटर है कि कुछ डिस्काउंट देके उसी ईयर उसको क्लियर कर दिया जाए। तो इस टाइप के डिस्काउंट को हम ट्रेड डिस्काउंट की कैटेगरी में डालेंगे। ये आपके कैटलॉग प्राइस पे हो सकता है, मार्केट प्राइस पे हो सकता है, जो भी आपने मार्क किया है प्राइस, फेस वैल्यू है, या प्रिंटेड प्राइस जिसको भी हम कहते हैं, ये सभी डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं इसी के। मार्क प्राइस, प्रिंटेड प्राइस, सेलिंग अमाउंट, लिस्ट प्राइस, कैटलॉग प्राइस, ठीक है, ये इन पे आपको डिस्काउंट देगा आपका जो सेलर है वो, ठीक है। क्यों देगा? क्योंकि आप उसे बल्क क्वांटिटी में परचेज कर रहे हो। क्लियर? सो इट विल बी डिडक्टेड। किस में से डिडक्ट होगा? आपके इनवॉइस में से डिडक्ट हो जाएगा। आपके प्राइस, जो टोटल अमाउंट ऑफ प्राइस है, सपोज 10 लाख है, सो इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम 10 लाख। और योर बिल प्राइस और योर फेस वैल्यू, total face value of the products, it will be deducted. So because it will be deducted regarding the invoice price, so there is no need to enter this type of discount in the books of accounts. So no entry is there in the books of accounts. Ma'am, please turn on your mic. 1 minute, 1 minute. Okay, I'm explaining again. So discount means a type of concession which is provided by the seller to their purchaser, and this is a type of deduction in the value of means in face value or catalog price or in the payment of cash. Clear? So both types of discounts are involved in this category. First one is trade discount and second one is cash discount. ठीक है, ऐसी डिडक्शन जो एक सेलर अपने सेल को इंक्रीज़ करने के लिए या अपनी कैश पेमेंट्स को क्विकली रिकवर करने के लिए जो सेलिंग प्राइस पे कंसेशन देगा, दैट टाइप ऑफ कंसेशन इज रिलेटेड विद डिस्काउंट. So two categories are there, trade discount and cash discount. According to trade discount, it is a type of discount which is provided by the seller to their purchaser regarding to increase their sale, regarding to clear their stock. ठीक है, क्लियर करना है स्टॉक, मीन्स स्टॉक में कोई फॉल्ट नहीं है, ठीक है। एक और टाइप है, एक और कैटेगरी है रिबेट, वो आपकी स्टॉक के पुअर कंडीशन में होने पे मिलेगी, वो इससे डिफरेंट है, वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे. सो रिगार्डिंग टू क्लियर देयर स्टॉक मीन्स नो डिफॉल्ट इज देयर इन स्टॉक, बट सेलर वांट्स टू सेल all types of products in a short time period. So for this means in this condition, to attract their purchaser, he is providing a type of discount to their purchaser, and that type of discount is related with trade discount, and it will be deducted from the invoice price, from the bill price or from the face value, marked value और catalog price. ठीक है, जैसे एक परचेज़र ने 10 लाख की गुड्स परचेज़ करनी है, क्लियर, और कंडीशन एग्रीमेंट ये होता है कि आप अगर हमारे यहाँ से परचेज़ करोगे तो आपको 1 लाख अमाउंट, 1 लाख रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा. ठीक है, अब वो उसने 10 लाख की गुड्स थी बट उससे रिकवर किए 9 लाख रुपीज़, क्योंकि वो 9 लाख रुपीज़ ही रिकवर कर रहे हैं कैटलॉग प्राइस में, और जो बिल बना के दे रहे हैं वो भी आपको 9 लाख का ही दे रहे हैं. ठीक है, 10 लाख माइनस 1 लाख करके 9 लाख की ही आपसे पेमेंट ले रहे हैं. सो देर इज़ नो नीड टू एंटर दिस टाइप ऑफ डिस्काउंट इन योर बुक्स ऑफ अकाउंटिंग. सो नो एंट्री इज़ देयर in regarding this type of discount, but you have to write down the amount which you have to pay, means that exact amount you have to enter in your अकाउंटेंसी बुक्स. मीन्स अगर आपका 10 लाख का गुड्स आ रही हैं, लेकिन आपकी जो पेमेंट एबिलिटी मीन्स पेमेंट लायबिलिटी है वो 9 लाख की है, चाहे आपने पे की है चाहे आपने क्रेडिट पे परचेज किया है, बट एज अ फर्म यू आर लाइबल टू पे ओनली 9 लाख, then only 9 lakh rupees you have to enter in the books of accountancy. ठीक है, आफ्टर डिडक्टिंग दैट टाइप ऑफ डिस्काउंट अमाउंट यू हैव टू राइट डाउन द अमाउंट इन योर बुक्स ऑफ accountancy. There is no need to mention that type of discount in books of account. आप वो 1 लाख को कहीं पे भी मेंशन नहीं करोगे कि ये हमें डिस्काउंट मिला है. आपने क्या करना है,
सिर्फ वो जो अमाउंट आपने पे किया है, जो अमाउंट आपका पे करना बनता है, ओनली दैट अमाउंट यू हैव टू राइट डाउन इन द बुक्स ऑफ अकाउंटेंसी। क्लियर? तो ये एक ऐसा डिस्काउंट है जो मेनली होल सेलर्स देते हैं रीटेलर्स को, क्योंकि होल सेलर्स जो हैं वो बल्क क्वांटिटी में मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर से परचेज करते हैं, उनके पास एक्सेस अमाउंट में स्टॉक अवेलेबल रहता है, एंड रिगार्डिंग टू क्लियर दैट टाइप ऑफ स्टॉक एंड दे अट्रैक्ट मैक्सिमम परचेजर टू इंक्रीज देयर सेल, क्योंकि एक टाइम पीरियड के बाद मे बी वो एक्सपायर हो सकता है, मे बी उसकी वैल्यू कम हो सकती है, ठीक है, मे बी वो डैमेज हो सकता है, तो बहुत से रीजंस रहते हैं। सो एवरी ईच एंड एवरी सेलर वांट्स टू सोल देयर गुड्स, वांट्स टू सेल देयर गुड्स ऑन टाइम और इन अ वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड, ठीक है। सो ये आपका ट्रेड डिस्काउंट रहेगा, कोई एंट्री नहीं करनी है आपने, लेकिन एग्जैक्ट अमाउंट विच इज़ पेबल और विच इज़ पेड by the purchaser you have to write down in the books of accountancy. Next one is cash discount. So cash discount means, अब देखो होलसेलर ने रिटेलर को अमाउंट मीन्स एनकरेज करने के लिए, मैक्सिमम क्वांटिटी में परचेज करने के लिए, एनकरेज करने के लिए उसको ट्रेड डिस्काउंट दिया। सपोज वही 10 लाख की गुड्स की एकदम से मेरी 10 लाख की सेल हो रही है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं 1 लाख का डिस्काउंट दे देता हूँ, वही 10 लाख वाली गुड्स मैं 9 में ही बेच देता हूँ, क्योंकि मुझे तो वो 7 की ही आई हैं, ठीक है, और मैं अगर 9 में भी बेच देता हूँ तो मेरे को फिर भी 2 लाख के प्रॉफिट पे सेल हो रही हैं, और इकट्ठा इतना स्टॉक जो है वो सेल हो रहा है, इसीलिए मुझे लमसम अमाउंट प्रॉफिट जो है वो इकट्ठा मिल जाएगा, तो मैंने ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। अब वो 9 लाख रुपीज़ उससे रिकवर भी तो करने हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो उसी टाइप से उसी टाइम पे आपको 9 लाख की कैश पेमेंट कर देगा, है ना, हो सकता है वो आपको 1 ईयर तक लटकाता रहे कि पेमेंट के लिए। सो टू ऑब्टेन कैश क्विकली फ्रॉम देयर परचेजर, that type of wholesaler or that type of retailer is giving a kind of discount. That type of discount is known as cash discount because this is directly related with the cash payment. जितनी आप कैश पेमेंट करोगे उतना आपको डिस्काउंट मिलेगा। अब उसने 9 लाख रुपीज़ रिकवर कर रहे हैं, अगर वो ये कंडीशन लगा देता है कि अगर आप अभी के अभी पे करते हो 9 लाख रुपीज़ कैश में, तो आपको 9 भी नहीं पे करने, आप 850 पे कर दो, तो मैं आपको 50,000 का और कैश डिस्काउंट दे दूंगा। क्लियर? लेकिन अगर आप विद इन द वीक पे करते हो तो आपके लिए क्या डिस्काउंट कंडीशन रहेगी? अगर आप विद इन 15 डेज पे करोगे या आप आफ्टर 1 मंथ पे करोगे तो क्या कंडीशंस रहेंगी, और अगर आप 1 मंथ के बाद करते हो तो आपको फुल पेमेंट करनी पड़ेगी। इस टाइप की कंडीशंस जो हैं वो सेलर जो है सेटअप कर सकते हैं अपने परचेजर के लिए। सो अगर वो कैश को क्विकली रिकवर करने के लिए, कैश की प्रॉम्प्ट पेमेंट रिसीव करने के लिए अपने परचेज़र को एक लमसम अमाउंट का डिस्काउंट दे रहा है, तो जिससे कि वो इनकरेज हो क्विकली पेमेंट के लिए, कैश पेमेंट के लिए, सो उस टाइप के डिस्काउंट को आप कैश डिस्काउंट बोलोगे। लेकिन ये डिस्काउंट मिलेगा उसी पे ही जितनी आप कैश पेमेंट कर रहे हो, ऑन पेमेंट इन कैश। सपोज आप 9 लाख आपने पे करना है, ठीक है, और आप कहते हो कि नहीं मुझे तो अभी मेरे पास अभी 4 लाख रुपीज़ है, मैं 4 लाख ही आपको ऑन द स्पॉट दे सकता हूँ। आपने क्या प्रपोजल दिया उसको कि 9 लाख अगर पेमेंट होती है तो 10% का आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। सो 9 लाख के अकॉर्डिंग आपको जो है 10% और कम देना पड़ेगा। सो अगर आप 9 लाख की पेमेंट करते हो तो आपको 10% 9 लाख पे ही मिल जाएगा, लेकिन अगर आप 4 लाख की पेमेंट करोगे तो आपको वो जो 10% है वो 4 लाख पे मिलेगा। अब मान लो आपने 9 लाख की पेमेंट की तो आपका 90,000 का तो डिस्काउंट ऑन द स्पॉट और हो गया। लेकिन अगर आप कहते हो कि मेरे पास 9 लाख रुपीज़ नहीं है, आई एम एबल टू पे ओनली 4 लाख रुपीज़, देन 4 लाख पे ही आपको वो 10% का डिस्काउंट मिलेगा। जितनी आप कैश पेमेंट कर रहे हो उसी पे ही आपको वो डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट मिलेगा। अगर 4 लाख की पेमेंट करते हो तो आपको 40,000 का ही डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो 4 लाख आपने पे करना है, 40,000 का डिस्काउंट हो गया, मीन्स यू आर एबल टू पे, यू हैव टू पे ओनली 360, तो आपकी 4 लाख की पेमेंट हो जाएगी। अब बाकी के जो 5 लाख रह गए हैं वो आप जब कभी भी पेमेंट करोगे उस पर एग्रीमेंट के वो रूल अप्लाई होंगे। सपोज आप विद इन द वीक पेमेंट कर देते हो, उसने कंडीशन लगाई है कि अगर विद इन द वीक पेमेंट होगी देन यू कैन गेट 5%
डिस्काउंट, ठीक है। तो आप आपकी वो 5 लाख की पेमेंट अगर विद इन द वीक आती है तो उस कंडीशन में आपको 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। अगर उन्होंने कंडीशन लगाई हुई है कि अगर आप आफ्टर 1 मंथ पेमेंट करोगे तो आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। सो अगर आपके वो 5 लाख रुपीज़ आफ्टर 1 मंथ आएंगे देन देयर इज़ नो डिस्काउंट फॉर यू, है ना। सो यू आर लाइबल टू पे द फुल अमाउंट 5 लाख। सो ये जो डिस्काउंट है ये आपके जितनी कैश पेमेंट है उस पर ही आपको मिलेगा एंड इट विल बी डिडक्टेड from seller side as well as purchaser side, because seller is providing that type of discount, so this is a type of expense for that seller, ठीक है ना। उसको कहाँ तो 9 लाख रुपीज़ मिलने चाहिए थे, कहाँ अब उसको 90,000 रुपीज़ कम मिलेंगे, मीन्स 8-10 मिलेंगे। सो दैट 90,000 इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस फॉर दैट टाइप ऑफ सेलर, ठीक है। अब वो एक्सपेंस है, नॉमिनल का रूल अप्लाई होगा। सो अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट्स रूल यू हैव टू डेबिट दैट टाइप ऑफ डिस्काउंट, and this one is write down as discount allowed, because seller is allowing that type of discount to their purchaser, clear। but for purchaser दिस टाइप ऑफ डिस्काउंट इज अ टाइप ऑफ इनकम। अब उसको 9 लाख की उसने 10 लाख की गुड्स ली हैं, 9 लाख की पेमेंट करी है, 9 लाख की पेमेंट में से भी उसका 90,000 का सेफ हो गया, मीन्स दैट पार्टी इज नॉट लाइबल टू पे 90,000 रुपीज़ इफ he or she is paying 9 lakh on the spot in cash form, clear। तो उनके 90,000 रुपीज़ सेव हो गए। सो that 90,000 is related with the income of that purchaser, and according to nominal account rule you have to credit all types of incomes, so you have to write down in credit side discount received, because as a purchaser that party is receiving that type of discount, that type of income, that type of discount is receiving that purchaser, so you have to credit according to the nominal account rule, clear। so this is all about discount, both the categories, trade discount no need to enter in the books, cash discount you have to pay only and only on the amount which is paid in cash, कैश में जितनी पेमेंट होगी उसी पर ही आपने देना है। इफ़ यू आर अ सेलर देन यू हैव टू राइट डाउन डिस्काउंट अलाउड इन द बुक्स ऑफ इन योर बुक, इफ़ यू आर अ परचेजर देन यू हैव टू राइट डाउन इन क्रेडिट साइड डिस्काउंट रिसीव्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंटेंसी, क्लियर।